ان کو وردی تو پہنائی گئی تھی کہ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کے ملازمین کی، لیکن حقیقتاً اس وردی کے پیچھے وہی وردی تھی جس کی کہتا ہے نا یہ اس کے پیچھے وردی ہے، وہی نامعلوم افراد تھے جو سب کو معلوم ہے۔ کل جب یہ مرحلہ ختم ہوا، ہمارے دونوں سینیٹران کو جب لایا گیا، ان سے ووٹ لیے گئے، ان کو لایا گیا، وہ آئے نہیں تھے، وہ آتے تو دوسرے ممبران کی طرح آتے۔ جب سیاسی شیشوں میں بند ان گاڑیوں میں ان کو لایا گیا، سیکیورٹی اتنا پروٹوکول جو شاید میں پارٹی پریزیڈنٹ مجھے نہیں ملا ہوگا زندگی میں کبھی۔ ایک زمانے میں ہوتا تھا یہاں پہ لکی سرکس، اب اس سرکس کو کیا نام دیں گے؟ شریفوں کا سرکس، زرداری کا سرکس، یا آئی ایس آئی کا سرکس؟ کسی کی منشا، کسی سیاسی پارٹی کی منشا و مرضی کے بغیر ان کے اراکین کو زد و کوب کر کر، ان کو اغوا کر کر، ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر ان سے اس آئین کی ترامیم کی منظوری لی جائے، مذاق اور مسخرے کا بازار جو ہے گرم ہے، جس کو لوگ جمہوری اور آئینی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کہ جس کے لیے بقول یہاں کی بڑی بڑی پارٹیوں نے کہ ان کے اکابرین، ان کے لیڈران، ان کے آباء و اجداد نے بڑی محنت، بڑی جد و جہد کر کر اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بقول ان کے اس متفقہ آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جس طرح اس آئین کے مقدس کتاب کی توہین کی گئی ہے، تذلیل کی گئی ہے، شاید ہی کسی آمر، کسی ڈکٹیٹر کے وقت میں ایسا ہوا ہو۔ جو مذاق، جو سرکس گزشتہ مہینے سے شروع کیا گیا تھا، آپ لوگوں کے سب کے سامنے تھا، کبھی رات کے اندھیرے میں وہ ڈرافٹ پیش کیا جاتا تھا، کبھی صبح سویرے لوگوں کو نیندوں سے جھنجھوڑ کر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر کر اس بل کو لایا جاتا تھا، لیکن حقیقتاً جس کو وہ متفقہ آئینی ترامیم کہتے تھے، اس پر حکومتی اراکین خود متفق نہیں تھے، جس پر حکومت کے اتحادی خود متفق نہیں تھے، جس کے لیے وہ روز و شام ایک کر کر کبھی اپنے اتحادیوں کو مناتے تھے، کبھی اپنے پارلیمنٹیرین کو مناتے تھے، اور تو کبھی بزور طاقت اپوزیشن کے ممبران کو، چاہے ان کا تعلق سینٹ سے، چاہے ان کا تعلق قومی اسمبلی سے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کل یہ ڈرامہ اپنی حتمی شکل کو آ پہنچا۔ اس سرکس کا کبھی ایک زمانے میں ہوتا تھا یہاں پہ لکی سرکس، اب اس سرکس کو کیا نام دیں گے؟ شریفوں کا سرکس، زرداری کا سرکس، یا آئی ایس آئی کا سرکس؟ جس انداز میں لوگوں کو زبردستی لے آ کر ان سے ووٹ لیے گئے، آپ کے سامنے تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 سینٹ کے اراکین غائب تھے۔ 16 سپٹمبر
16 अक्टूबर को हमारे दोनों सेनेटरों को उठाया गया। एक को बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लंच का इंतजाम किया गया था उसमें उसको पेश किया, और उस खातून ने अपने आंसुओं और अपनी सुस्कियों से अपनी आपबीती का इजहार किया। वहां पर बैठे हुए सेनेटरों ने उससे इजहार हमदर्दी तक की। उसके साथ वो जो खवातीन की आलमी चैंपियन अपने आप को कहलाती हैं, उन्होंने भी आंसू बहाने की एक झूठी कोशिश की। लेकिन कल हमारे दोनों सेनेटरान को आप लोगों ने खुद देखा होता, मेरे जियो के एतजाज भाई यहां पर नहीं है, उनको तो एजाज सईद साहब, उनको तो खुद मालूम था जिस अंदाज में उनको लाया जा रहा था, उनको भी लिफ्ट में जो है धक्के देकर बाहर निकाला गया। सवाल ये पैदा होता है कि पहले इस ड्राफ्ट को छुपाया क्यों जा रहा था? ये कोई एटमी मुआहिदा था किसी कंपनी के साथ? जिस तरह के सीपेक के हवाले से वो कहते हैं कि वो मुआहिदात हम नहीं दिखा सकते, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। आईनी तरह में तो कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होने चाहिए। वो आज अगर पास हो जाती है और कल गैजेटियर के थ्रू प्रिंटिंग, उनके प्रेस के थ्रू कल आपको यहाँ की किताबों की दुकान में आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी, उसको छुपाने की जरूरत क्या थी? और उसके लिए आप लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके किसी की मंशा, किसी सियासी पार्टी की मंशा और मर्जी के बगैर उनके अराकीन को ज़दोकोब कर कर, उनको अगवा कर कर, उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर उनसे इस आइन की तरामीम की मंजूरी ली जाए, तो ये आज नहीं, आने वाली तारीख में ना कि सिर्फ स्याह अल्फाजों में लिखी जाएगी। वो पॉलिटिकल पार्टियां, वो सियासी क़यादत जिन्होंने कहता है हमने दिन रात कोशिश कर कर इन आइनी तरामीम को मंजूर कराया है, ये जिंदगी भर उनके सियासी कैरियर पर एक स्याह धब्बे के मानंद होगा। आज कल जब ये मरला ख़त्म हुआ, हमारे दोनों सेनेटरान को जब लाया गया, उनसे वोट लिए गए, उनको लाया गया, वो आए नहीं थे। वो आते तो दूसरे मेंबरान की तरह आते। जब शीशों में बंद उन गाड़ियों में उनको लाया गया, सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल जो शायद मैं पार्टी प्रेसिडेंट, मुझे नहीं मिला होगा ज़िंदगी में कभी। मैं MNA रहा हूं, इतना प्रोटोकॉल मुझे नहीं मिला होगा। उन दोनों को सिक्योरिटी, उनको वर्दी तो पहनाई गई थी आपके सेनेट की और कौमी असम्बली के मुलाजमीन की, लेकिन हकीकतन उस वर्दी के पीछे वही वर्दी थी जिसकी कहते हैं ना, ये जो के पीछे वर्दी है। वही नामालूम अफराद थे जो सबको मालूम है। वही नामालूम अफराद हैं जो बलोचिस्तान से हर रोज लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। इन्हीं को भी अगवा करना, इनकी अबडक्शन भी उन्हीं के हाथों से हुई है। तो पार्टी ने यह फैसला किया कि वो अरकान, चाहे वो किसी मजबूरी के तहत, ज्यादती के तहत, जबर के तहत, उन्होंने इस एक गैर आइनी, एक स्याह तरीन आइनी तरामीम में वोट दिया है, वो अपना सेनेट से इस्तीफा पार्टी को पहुंचा दे। तो हमारे सेनेटर कासिम रूंजा साहब आज सुबह पहुंचे सेक्रेटरीट में, सेनेट सेक्रेटरीट में, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। तो आज इरादा ये था कि सेनेट के इजलास में भी वो अपनी आपबीती भी बताएंगे और अपना इस्तीफा चेयरमैन के सामने वो खुद पेश करेंगे। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, हस्बे रवायत
इनकी तारीख जिस तरह मैं 3 सितंबर को इस्तीफा देने ऐवान में पहुंचा तो एक खलबली सी मच गई थी, बिल्कुल इसी तरह ही खलबली मची। और उनको पता था कि जब मैं ऐवान में आऊंगा तो इनका चट्टा बट्टा सब खोल के रख दूंगा और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी असेंबली की। तो उन्होंने उस कोरम की निशानदेही की और मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर अपना इस्तीफा पेश करूं। आज भी जब हमारे सेनेटर साहब वहां पे पहुंचे, मैं भी वहां पे गैलरी में जाके पहुंचा तो हमने देखा कि वहां पर खलबली मच गई। ना चेयरमैन थे, ना डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के, जो कमेटी के सरबराह होते हैं, क्या नाम है सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। तो कहीं से कोई शायद वही नाजिल हो गई, कहीं से कोई इशारा आ गया। उन्होंने पहले क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड किया और 20 मिनट का वक्फा दे दिया। और इसी दौरान हमने देखा कि तमाम मेंबरान जो हैं वो एक एक करते हुए निकलना शुरू हो गए, चंद एक छोड़ दिए गए। 20 मिनट के बाद फिर इजलास शुरू हुआ और किसी एक मेंबर ने कोरम की निशानदेही की। और वो कौन सा मेंबर था जी? वो खुद कुछ दिन पहले अगवा हुआ था। उसने निशानदेही की और हमारे सेनेटर को इस बात की इजाजत तक नहीं दी गई कि वो अपनी आपबीती वहां पर बयान करे और अपना इस्तीफा पेश करे। तो मजबूरन आज फिर हमें आप लोगों के सामने आना पड़ा। और कासिम रूंजो साहब जो हमारे पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर भी हैं, सेनेट में सेनेटर हैं, वो अपनी आपबीती बताएंगे। आप पहले बात करेंगे? ये राजा साहब भी बैठे हुए, वो कुछ बात कर लें, फिर मैं कासिम रूंजो साहब से कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अख्तर जान मैंगल साहब के साथ आया कि जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, जो लाकानूनियत और गैर आइनी इक़दाम उठाए गए हैं और जिस तरह से इनके सेनेटर्स को अगवा किया गया, उठाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में मजम्मत की थी, सेनेट में मजम्मत की थी। देखें जिस तरह से ये आइनी तरामीम का एपिसोड चला, अपने आप को जमहूरी कहने वाले जितनी भी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में हैं, जिन्होंने काम किया, उन्हें चुल्लू बार पानी लेकर उस पर डूब मरना चाहिए। वो भी गटर का पानी, वो भी गटर का। ये इनके लिए वाकई डूब मरने का मकाम है, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे उनको वोट देने वाले जो हैं। लिहाजा ये जो काम किया गया है, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन हफ्ते थे और ये दिन थे जिनमें ये दिन रात लोगों को प्रेशराइज करना, लालच देना और अगवा करना, ये पाकिस्तान में होता रहा है। और एक भी हुकूमत का सेनेटर नहीं बोला ये जुल्म हुआ है, सेनेट के अंदर आवाज नहीं निकली उसकी। यानी ऐसे लगता था ये भेड़ बकरियां हैं जिनकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम को अब देख लेना चाहिए कि कौन से लोग सेनेट में और पार्लियामेंट बैठकर इनके लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के और इनके फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। बाज को मैंने देखा सेनेटर्स को, उनकी आंखों में कहने आंसू थे, कहने कि हम मजबूर हैं हम वोट देने पर, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा है। ये नहीं, इस तरह से ये भेड़ बकरियां होती हैं, इंसान ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को आजाद खल्क किया है, गुलाम बनने के लिए खल्क नहीं किया और आजाद रहने के लिए खल्क किया है। ये सेनेट भी हो, पार्लियामेंट भी हो, ये गुलामों का सेनेट है, ये गुलामों की पार्लियामेंट है जिसमें किसी की राय नहीं है। राय किसकी है? जो पाकिस्तान पर पहले डायरेक्ट मुसल्लत होते थे, अब इनडायरेक्टली मुसल्लत होकर इनसे वो करतूत और स्याह काम अंजाम दे रहे हैं जो सारी जिंदगी इनकी जिंदगी की किताब पर ये स्याही बाकी रहेगी और ये कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लिहाजा यहाँ सेनेटर साहब हैं, मैंने पहले भी कहा, हम हर मजलूम के साथ हैं, हर जालिम के खिलाफ हैं, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस मसले में, और वैसे भी हम तहरीक बालिय जमहूरियत आईन पाकिस्तान के अंदर मैंगल साहब के साथ हैं और हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जुल्म के खिलाफ जदोजहद करने में हम इकट्ठे रहेंगे।